How shall a man save his soul even if he gains the whole world? यदि मनुष्य सारे जगत को भी कमा ले तो अपने प्राण को कैसे बचाएगा? There was a great famous actress in India, भारत में एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री हुई and she was so popular and loved by millions in this nation. और वो बहुत लोकप्रिय थी और देश के लाखों लोग उससे प्रेम Very करते थे। glamorous. बहुत ग्लैमरस थी, She was earning crores of rupees. करोड़ों रुपए कमा रही She थी got the national award, और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला and she had a beautiful daughter. और उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। The daughter grew up. वो बेटी बड़ी हुई, Everything was perfect. सब कुछ बिल्कुल सही था। But then she fell in love with another man who was an actor. और फिर यह अभिनेत्री एक व्यक्ति से प्रेम करने लगी जो कि एक अभिनेता था। He was a married man. वो शादीशुदा था, But she never got to him. लेकिन यह उसे कभी हासिल नहीं कर पाई। He rejected her. उसने इसे अस्वीकार कर दिया, Her heart broke. उसका दिल टूट गया She got into drugs. और वो नशे करने लगी And she struggled in life. और जीवन में संघर्ष करने लगी। The daughter grew up, और बेटी बड़ी हो गई, got married. उसका विवाह हो गया And because of the mother's acts, she left the home. और अपनी माँ की हरकतों के कारण वो घर छोड़कर चली गई। This broke her more इससे वो और ज्यादा टूट गई and suffered so और much. बहुत दुखी हो गई। Loneliness killed her. अकेलेपन ने उसे मार डाला। One side she was so adored by millions of people. एक तरफ तो लाखों लोग उससे इतना प्रेम करते थे The other side she was in despair. और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा निराश थी, All alone. बिल्कुल अकेली। Finally, और अंत में she could not bear to live this life. वो इस तरह के जीवन को सहन नहीं कर पाई। Drugs overpowered her नशे ने उसे जकड़ लिया and she died. और उसकी मौत हो गई। For 3 days, nobody searched for her. 3 दिन तक किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। Only on the 3rd day, the neighbors complained and they opened the door and found her dead. और तीसरे दिन जब पड़ोसियों ने दुर्गंध के कारण पुलिस को बुलाया तो उसे मृत पाया। That is the power of sin. यह है पाप की शक्ति। The Bible says in Romans 6:23, रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। But thanks be to God for the grace of God which gives us eternal life. लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। Maybe your soul is dead because of your sin. शायद आपके पाप के कारण आपकी आत्मा भी मर चुकी है, Sinful actions. पाप के कामों के कारण। Because curses have come because of your sin. आपके पाप के कारण आपके जीवन में श्राप आ गए हैं। Jesus says, I am coming to you. यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। The Bible says in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53 उसके 5 पद में बाइबल बताती है, Jesus took all our sins upon himself on the cross. यीशु ने हमारे सब पापों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। When God saw that man was suffering, unable to come out of sin, जब परमेश्वर ने देखा कि आदमी कष्ट में है और अपने पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा the है, women were suffering in their sins, unable to save themselves. औरत अपने पाप के कष्ट में है और अपने आप को बचाने में असमर्थ है, God came down into this world in the form of a human तो being. परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गया। His name was Jesus. उसका नाम यीशु है And he came into the world. और वो संसार में आया And he suffered all the problems that you and I go through. और उन सब समस्याओं को सहा जो आप और मैं अपने जीवन में झेलते हैं। And finally he had to destroy the death caused by sin through his own death. और अंत में उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु का नाश कर दिया जिसे पाप लेकर आता है। And only the pure blood of a human being can cleanse another person. और केवल किसी मनुष्य का शुद्ध लहू ही दूसरे मनुष्य को शुद्ध कर सकता है, Not the blood of bulls and goats. भेड़ बकरियों का लहू ऐसा नहीं कर सकता। And no man, no woman is holy in this और world. इस संसार में कोई आदमी कोई औरत पवित्र नहीं है। So God came in the form of a human being, perfect and holy with holy blood. और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके उस सिद्ध और पवित्र लहू को लेकर इस धरती पर आया And he went to the और वो cross. क्रूस पर चढ़ा, Took all our sins upon him. हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया। He said these men should not be punished, these women should not be punished. उसने कहा इन पुरुषों को, इन स्त्रियों को दंड नहीं मिलना चाहिए। For them let me become a sacrifice. उनके लिए मैं एक बलिदान बनूंगा। For their sins let me be beaten, let me go through all the agony caused by sin. उनके निमित्त मैं मार खाऊंगा और पाप के कारण जो कष्ट उन पर आना है उस कष्ट को मैं अपने ऊपर सहूंगा।
Jesus said, let me be punished यीशु ने कहा, मैं दंड सहूंगा, for no sin of mine, अपने किसी पाप के कारण नहीं, but for the sins of the whole world. परंतु पूरे संसार के पापों के कारण Let me be punished. मैं दंड सहूंगा, Let my blood be shed. मेरा लहू बहाया जाए। That's why he offered himself as a sacrifice for you and me to be forgiven of our sins. इसीलिए उसने अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ा दिया ताकि आप और मैं पापों से क्षमा किए जाएं। Jesus, यीशु God in flesh, देहधारी परमेश्वर took all our sins upon himself. उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले He लिया, suffered. उसने दुख उठाया, He paid the price. उसने कीमत चुकाई, He took the punishment. उसने दंड को ले लिया And he shed his blood. और उसने अपना लहू बहाया। Of course, he destroyed death. उसने अवश्य मृत्यु का नाश किया, The death which comes because of sin. वो मृत्यु जो पाप के कारण आती है। And he rose upon the third day. और तीसरे दिन वो जी उठा, Jesus rose up. यीशु जी उठा, He came up वो alive. जीवित हो गया Today he is alive. और आज वो जीवित है। You know why he is alive? जानते हैं वो जीवित क्यों है? To take every one of your sins out of you. आप में से प्रत्येक के अंदर से आपके पापों को निकालने If के you लिए। read Luke chapter 18 and verse 13, यदि आप लूका 18 उसके 13 पद को पढ़ें, a man who was a sinner cried to God एक पापी मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा and said, Oh God, I am a sinner. Have mercy on me. और कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। As he cried, God said, This man has cried for his sins. I will forgive him. और जब उसने पुकारा, परमेश्वर ने कहा, इस मनुष्य ने अपने पापों के लिए मुझे पुकारा है, मैं उसे क्षमा करूंगा। Tonight you have to cry. आज रात आपको पुकारना होगा, Tonight you have to cry. आज आपको पुकारना होगा। Cry to Jesus, यीशु को पुकारें, who is here right now by your side. जो इस समय यहाँ पर आपके पास है, Right now by your side. इसी समय आपके पास है, And tell him, Oh और God, उससे कहें, हे I परमेश्वर, am a sinner. मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, All sins. सब पापों से। Now Jesus will come. अब यीशु आएगा, As you saw him healing the people, now he will cleanse you of your sins. जैसे आपने उसे लोगों को चंगा करते हुए देखा, अब वो आपके पापों को शुद्ध करेगा। He'll remove the root of sin from you. आपके अंदर से पाप की जड़ को खत्म करेगा। He will remove the root of evil pleasures, root of the curse of sin from you. वो बुरी लालसाओं को और पाप की जड़ को आपके अंदर से खत्म करेगा, And all your past sins will be wiped away. और आपके पिछले सब पाप मिटा दिए जाएंगे। He will make you a new person. वो आपको एक नया मनुष्य बना देगा, New person. नया मनुष्य। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Now he will cleanse you. अब वो आपको शुद्ध करेगा। He is here right now. इस समय वो यहाँ उपस्थित है। Wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, tell him, उससे कहें, Jesus, यीशु cleanse me, मुझे शुद्ध करें, wash me, मुझे धो दें, wash my मेरे husband, पति को धो दें, wash my children of their मेरे sins. बच्चों को उनके पापों से धो दें, Wash us with your blood, Lord हमें Jesus. अपने लहू से धो दें प्रभु यीशु। Jesus, wash me of my sins with your blood. यीशु मुझे मेरे पापों से अपने लहू के द्वारा धो दें। Jesus, यीशु I receive the forgiveness of sins from you. मैं आपसे अपने पापों की क्षमा को ग्रहण करता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। From today, you're the child of Jesus. आज से आप यीशु के बच्चे हैं। You should never go back to sin again. अब आप कभी मुड़कर पाप की ओर ना जाएं। If you have been taking bribes, stop it. यदि अब तक आप घूस लेते रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you have been sinning in your body with your flesh, stop it. यदि आप अपने शरीर के द्वारा पाप करते आ रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you've been beating your children, beating your wife, stop it. यदि आप अपनी पत्नी या बच्चों को पीटते रहे हैं तो अब इसे बंद कर Throw दें। away alcohol. दारू को फेंक दें, Throw away cigarettes. सिगरेट को फेंक दें, Throw away drugs. नशे की दवाइयां फेंक दें, Throw away wrong things that you see in your phone. अपने फोन में जो गलत चीजें आप देखते हैं उन गलत चीजों को मिटा दें And turn to और Jesus. यीशु की ओर मुड़े, Turn to यीशु Jesus. की ओर मुड़े।
God will protect you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, God will protect वो you. आपकी रक्षा करेगा। Psalm 72 and verse 13 भजन says, संहिता 72 उसका 13 पद कहता है, The Lord will take pity on the weak and save the needy from death. वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। Psalm 121 and verse 7 भजन says, संहिता 121 उसका 7 पद कहता है, The Lord will watch over your प्रभु souls. तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। He will keep you holy in this world, connected to वो इस Jesus. संसार में आपको पवित्र और यीशु से जोड़े रखेगा। And when you die, He will take you to heaven to live with Him forever. और जब आपकी मृत्यु होगी तो वो आपको स्वर्ग ले जाएगा ताकि आप अनंत काल तक उसके साथ रहें। Today you have become the child of Jesus, आज आप यीशु की संतान बन गए हैं, God in flesh. जो देहधारी परमेश्वर है। He will be with you to protect you. वो आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेगा। Live a holy life with the help of Jesus. यीशु की सहायता से पवित्र जीवन बिताएं। I'm going to introduce to you a couple who had such a मैं blessing. एक दंपति को आपके सामने बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी ही आशीषों को पाया। Say your name and tell us what God did for you. मेरा नाम राजू यादव कसारे है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरी शादी 2006 साल में हुई। 2006 साल से मेरे जीवन में दुखों का पर्वत गिर पड़ा था और मैं मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लगा और मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब उसे गर्भ ठहरा था तब मैंने उसे बहुत पीड़ा दी, मुक्कों से और लातों से मैंने उसे मारा और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार मैंने किया। हर प्रकार की अलग अलग गालियाँ मैंने उसे दी और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और फिर हमारी ये बात तलाक लेने तक पहुँच गई। हम दोनों का तलाक होने वाला था। मैं रो रहा था कि हमारा तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचता रहा, रात भर मैं सोया नहीं और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि औरंगाबाद में डॉक्टर पॉल दिनाकरन इनकी एक सभा है और तू वहाँ पर चल। और उस जगह पर डॉक्टर पॉल दिनाकरन इन्होंने मेरा नाम पुकारा और भविष्यवाणी की। राजीव, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। In the relationship with your wife, you have sinned. अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध में आपने पाप किया है। You have sinned against your wife and the relationship with her. आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध और उसके साथ अपने संबंध में पाप किया You है। are repenting tonight. आज की रात आप पश्चाताप कर रहे हैं। Jesus transforms you and forgives you. यीशु आपको क्षमा कर रहा है और आपको बदल रहा है। ये शब्द मेरे कान पर पड़ते ही पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। उस जगह पर बिजली का झटका लगने जैसे मैं नीचे गिर पड़ा। उस जगह पर मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2016 में मुझे BTH का प्रमाण पत्र मिला है और आज मैं औरंगाबाद में बिलीवर्स चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ। How correctly God revealed His life. परमेश्वर ने कितनी स्पष्ट रीति से इनके जीवन को प्रकट किया। Today God has transformed them. आज परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला है And they are affectionate husband and wife and darling child. और ये आपस में प्रेम करने वाले पति पत्नी हैं और इनके साथ इनका एक प्यारा सा बच्चा है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, how many of you want Jesus to come into your heart tonight? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं आज रात यीशु आपके हृदय में आए? Wonderful to see all your hands. आप सबके हाथ देखकर बहुत Raise it अच्छा high लगा। before God. प्रभु के सामने इन्हें ऊंचा उठाएं। Now I'm going to pray अब मैं प्रार्थना करूंगा that God will answer your prayer to Him और परमेश्वर उसके समक्ष की जाने वाली आपकी प्रार्थना का and उत्तर He will देगा release you from your sins which have brought a curse in your family, in your और life. वो आपको आपके उन पापों से आजाद करेगा जो आपके और आपके परिवार के जीवन में श्रापों को लेकर आए हैं। Lord, hold on to the hand of each one here. प्रभु यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के हाथ को थामे, Wash them with your blood, Lord उन्हें अपने Jesus. लहू से धो दें प्रभु यीशु, Wash them with your उन्हें अपने blood. लहू से धो दें। Let every sin and sinful addiction and curse leave them in Jesus' name. प्रत्येक पाप की आदत और प्रत्येक श्राप उन्हें यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए। Let every sin come out. प्रत्येक पाप निकल जाए। Sinful nature leave in Jesus' पाप name. का स्वभाव यीशु के नाम से निकल जाए। Sinful addictions leave in Jesus' पाप की name. आदतें यीशु के नाम से निकल जाएं। The curses of sin leave in Jesus' पाप के name. श्राप यीशु के नाम से निकल जाएं।
You demonic spirits bringing the sinful nature, I command you to leave their spirits in Jesus' पाप name. के स्वभाव को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। Leave the families in Jesus' यीशु name. के नाम में परिवारों को छोड़कर चली जाओ। Especially in the relationship between the husband and the wife, whatever sinful relationships are there, whatever sins are there in their relationship, forgive them, Lord, and transform them to love each other. विशेषकर पति पत्नी के आपसी संबंध के बीच में यदि कोई और पाप के संबंध हैं, तो ऐसे पति पत्नियों को क्षमा कर दें और उन्हें बदल दें कि वो आपस में प्रेम करने लगे। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Lord, enter into their hearts. प्रभु उनके हृदयों में प्रवेश करें। Every heart, प्रत्येक हृदय में, every spirit, प्रत्येक आत्मा में, everyone's mind, प्रत्येक के मन में, everyone's body. प्रत्येक के शरीर Fill में, their families उनके परिवारों को भर दे। with thy mighty Holy Spirit. अपने सामर्थी पवित्र आत्मा से भर Release दे। them from sin. उन्हें पाप से छुड़ा दे, Let them be free. वो आजाद हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम You में। demonic spirits, just keep quiet and leave them in Jesus' name. ये दुष्ट आत्माओं, अपने मुंह बंद रखो और यीशु के नाम में उन्हें छोड़कर Honor चली them, जाओ। Lord. इन्हें आदर दें प्रभु। No more shame because of these evil powers. इन दुष्ट शक्तियों की वजह से उन्हें और शर्मिंदगी ना झेलनी Give पड़े। them honor and joy. उन्हें आदर और आनंद दे, Honor and joy. आदर और आनंद दे As God's children from today. आज से परमेश्वर के बच्चों के रूप Thank में। you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद We प्रभु। love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ Shall we यीशु। all clap our hands and give Jesus all the glory? हम सब ताली बजाकर यीशु को सारी महिमा दे। A great deliverance is coming upon everybody. एक महान छुटकारा सबके ऊपर उतर रहा है। Jesus is coming. यीशु अंदर आ चुका है। Keep on saying, ये कहते रहे, Jesus, यीशु you are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। If you have received the Lord in your heart right now, call this number that's on the screen. अगर आपने अपने हृदय में अभी यीशु को ग्रहण किया है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। Somebody will pray with you, कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा lead you into the path of righteousness. और आपको धार्मिकता की राह में आगे बढ़ाएगा। Or go to this website, या फिर इस वेबसाइट पर आप जाएं, or write a letter or an email to me, या एक पत्र या फिर मुझे एक ईमेल भेजें, or come to a prayer tower which is in your city. या आपके शहर में जो प्रेयर टावर है आप वहाँ आएं। You can get the list of prayer towers from our website, jesuscalls.org. आप jesuscalls.org नामक हमारी वेबसाइट से हमारे प्रार्थना भवन की जानकारी पा सकते हैं। or jesuscalls.com if you're in the United States. या अगर आप यूएसए में हैं तो jesuscalls.com पर आप ये पा सकते हैं। Yes, you're welcome to come to the prayer tower to be blessed. हाँ, प्रार्थना भवन में आशीषों के लिए आपका स्वागत है। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष God दे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।